In this video, we will discuss concepts through GATE previous year questions. Here, we will discuss the concepts related to steady flow energy equation, and with the help of these GATE previous year questions, we will discuss. In previous videos, we have discussed about first law of thermodynamics, work and heat transfer, and ideal gas equation and basic concepts related to these topics. GATE previous year questions we have already discussed. The concepts and some numericals are also discussed in the videos which are uploaded in morning session. In morning, we are daily uploading 2 videos which are related to the concepts of thermodynamics, and here that videos are basically related to the theory portion, and related to the numerical portion we are discussing here. And here we will learn the concept through these GATE previous year questions. These concepts are also helpful for other engineering competitive examinations. So let's start our discussion regarding these GATE previous year questions. If any doubt in these previous year questions, you can ask in comment box. So let's start our discussion regarding these previous year questions. So this is basically question number 27. The 26 questions we have already discussed. Okay, this question number 27 is basically the steam enters a turbine at 30 bar 300 degrees Celsius. The internal energy is 2750 kilojoule per kg. Enthalpy is basically 2993 kilojoule per kg, and exit the turbine as saturated liquid. Okay, so turbine में जो आपको जो steam enter कर रहा है, that is superheated. Its pressure is 30 bar and temperature is 300 degrees Celsius, and enthalpies and internal energies are given. And जो exit हो रहा है टर्बाइन से, स्टीम टर्बाइन से, दैट इज बेसिकली द सैचुरेटेड लिक्विड. सो जो भी आपका प्रॉपर्टीज हैं लाइक इंटरनल एनर्जी इज एंड इंथैल्पीज आर गिवन हियर. इंटरनल एनर्जी 225 किलोजूल पर केजी इज गिवन, एंड इंथैल्पी इज गिवन 226 किलोजूल पर केजी. Heat loss to the surrounding is 50 kilojoule per kg of steam flowing through the turbine. Neglecting the change in kinetic and potential energy, the work output of the turbine in kilojoule per kg of steam is. तो हमें देखिए वर्क आउटपुट निकालना है. ठीक है, अब देखिए बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है ये स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से रिलेटेड है, क्योंकि जो भी हम SFE लगाएंगे वो इन बेसिकली प्रैक्टिकल डिवाइसेस में लगाते हैं. ये हम मॉर्निंग वाली वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं अबाउट टर्बाइन, कंप्रेशर्स, पंप, ओके, बॉयलर, इवापोरेटर, कंडेंसर. इनमें SFE इक्वेशन कैसे लगाते हैं ये हम मॉर्निंग वाली वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं. ओके, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट SFE इक्वेशन लिख रहा हूँ. ठीक है, H1 + C1 स्क्वायर अपॉन 2000, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये इक्वेशन कैसे हमारा आता है. प्लस Q, दिस इज इक्वल्स टू H2 + C2 स्क्वायर अपॉन 2000 प्लस G इंटू Z2 प्लस W. ओके, सो बेसिकली देखिए दिस इज स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन. ये एनर्जी बैलेंस है बेसिकली. तो जब हम टर्बाइन में ऑब्जर्व करते हैं कि जो इनलेट पे जो फ्लूइड है दैट इज बेसिकली सुपर हीटेड, एंड व्हेन इट एग्जिट द टर्बाइन दैट इज सैचुरेटेड लिक्विड. तो इंथैल्पीज आर गिवन बेसिकली. ठीक है, टर्बाइन में इनलेट पे इंथैल्पी हमें गिवन है दैट इज 2993. सो H1 जो है टर्बाइन के इनलेट पे इंथैल्पी होगा दैट इज 2993 प्लस. अब इन्होंने बोला है कि नेग्लेक्टिंग द चेंज इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी. तो देखिए ये जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी वाली टर्म्स है ये नेग्लेक्ट हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि चेंजेस आर वेरी नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू इंथैल्पी चेंज. ओके, सो वी कैन नेग्लेक्ट इट. अब यहाँ पे हीट लॉस टू द सराउंडिंग हमें गिवन है. अब हीट लॉस इज गिवन, सो जब भी हीट लॉस टू द सिस्टम होगा तो वो नेगेटिव होता है. सो बेसिकली Q इज -50. सो यहाँ पे जब Q का वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँगा सो दैट इज कमिंग आउट टू बी -50. दिस इज इक्वल्स टू H2. H2 is nothing but the enthalpy of the fluid which is at the exit section of the turbine. तो exit section of turbine पे enthalpy of the fluid is given 226 plus how much amount of the work is produced by the turbine. ठीक है, सो यहाँ पे कितना वर्क प्रोड्यूस हुआ है टर्बाइन से ये हम यहाँ से कैलकुलेशन करके बता सकते हैं.
तो ये हमारा आ जाएगा 2993 माइनस 50 माइनस 226, दैट इज बेसिकली इक्वल्स टू W डॉट, और यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो जो हमारे पास जो वर्क आउटपुट आएगा दैट इज 2717 किलो जूल पर केजी। ओके, सो दिस इज नथिंग बट द वर्क आउटपुट। तो इतना वर्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये आप सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। यू विल गेट दिस आंसर। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए NET टाइप क्वेश्चन है, सो आपको ये आंसर जो भी आता है आपको फिल करना है। तो दिस इज द एग्जैक्ट आंसर। तो देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी टरबाइन, स्टीम टरबाइन है बेसिकली, सो स्टीम टरबाइन इज जनरली यूज्ड इन रैंकाइन साइकिल में, हम पढ़ते हैं पावर प्लांट में। सो जो स्टीम टरबाइन का जो यूज होगा, और ये हम जो डिस्कशन करते हैं स्टीम टरबाइन का, ये पावर प्लांट में करते हैं और इन केस ऑफ अ रैंकाइन साइकिल, ठीक है। तो रैंकाइन साइकिल में यदि मैं यहाँ पे वो साइकिल ड्रॉ करता हूँ, वैसे हमारा यहाँ का पार्ट नहीं है वो थर्मो का, इट इज़ अ पार्ट ऑफ पावर प्लांट। सो देखिए यहाँ पे कुछ पंप होगा, फिर ये बॉयलर से बेसिकली हीट ऐड होगा। अब यहाँ टरबाइन लगा होता है, ठीक है। अब टरबाइन में देखिए दिस इज द प्रोसेस विच इज बेसिकली अकरिंग इन टरबाइन हियर। अब ये स्टेट हमें गिवन था, टरबाइन का इनलेट है, ये जो डिवाइस लगा हुआ है यहाँ पे इस साइकिल में, दिस इज बेसिकली द टरबाइन। अब यहाँ पे दिस स्टेट इज सुपर हीटेड, यहाँ पे हमें गिवन था सैचुरेटेड लिक्विड है, सैचुरेटेड स्टेट में हमारा फ्लूइड इज एग्जिट एट द टरबाइन सेक्शन। तो टरबाइन के आउटलेट पे जो कंडीशंस हमें गिवन थी, वो गिवन था कि द फ्लूइड इज सैचुरेटेड, तो वो यहाँ होगा, देखिए सुपर हीटेड वो यहाँ होगा। तो हमें बताना था कि कितना अमाउंट ऑफ वर्क इज प्रोड्यूस्ड इन द टरबाइन, ये हमें कैलकुलेट करना था। तो वो देखिए हमने कैलकुलेट किया है बेसिकली, इट्स वेरी सिंपल। बेसिक एप्लीकेशन ऑफ SFE से हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 वी विल डिस्कस हियर। इन दिस क्वेश्चन, दिस इज बेसिकली GATE 2016 प्रॉब्लम। The steam at an initial enthalpy of 100 kilojoule per kg and inlet velocity of 100 meter per second enters an insulated horizontal nozzle। अब देखिए इट इज़ अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू नोजल। सो नोजल में भी हम SFE अप्लाई करेंगे, ठीक है। इन डिवाइसेस में SFE कैसे अप्लाई करते हैं ये हम ऑलरेडी मॉर्निंग वाले वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं हम। इट लीव द नोजल एट 200 मीटर पर सेकेंड, द एग्जिट इंथैल्पी विल बी। तो देखिए यहाँ पे बेसिक जो हमें पूछा है कि SFE इक्वेशन यदि हमें लगाना आता है तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बहुत स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। तो मैं SFE इक्वेशन लिख रहा हूँ H1 + C1 स्क्वायर अपॉन 2000 प्लस G इंटू Z1 प्लस Q, दिस इज इक्वल्स टू H2 + C2 स्क्वायर अपॉन 2000 प्लस G इंटू Z2 प्लस W। अब देखिए यहाँ पे जो भी आपको इक्वेशन नज़र, जो भी ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है टर्म, हर टर्म का जो यूनिट होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। लाइक दिस इज इन किलो जूल पर केजी। ओके, सो दिस काइनेटिक एनर्जी वाला जो C1 स्क्वायर अपॉन 2000 है, इसका यूनिट भी किलो जूल अपॉन पर केजी है, ठीक है। ये भी किलो जूल पर केजी में है। तो जो भी आपको यूनिट, जो भी हर टर्म का यूनिट सेम होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज जो हमारा इक्वेशन होगा वो डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं कि स्टीम जब एंटर करता है नोजल से, तो देखिए मैं यहाँ पे नोजल ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज अ बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नोजल, ठीक है। तो इनलेट और एग्जिट सेक्शन पे हमें दे रखा है कि ये H1 जिस एंथैल्पी से फ्लूइड एंटर कर रहा है ये 100 है, जिस एंथैल्पी से फ्लूइड विच इज़ लिविंग ये हमें निकालना है कि एग्जिट एंथैल्पी क्या होगा। अब इनलेट वेलोसिटी, इसका मतलब जो C1 है वो हमें दे रखा है 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। C2 जो हमें दे रखा है दैट इज़ 200 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो हम इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए यदि मैं यहाँ पे इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करता हूँ, सो आई विल बी गेटिंग द आंसर, ठीक है। सो इसका आंसर क्या होगा, देखिए अब हमें इसमें SFE इक्वेशन अप्लाई करेंगे। सो SFE इक्वेशन आई एम अप्लाइंग हियर, यहाँ मैं अप्लाई कर रहा हूँ। देखिए सो H1 का वैल्यू क्या होता है, CP इंटू T1। सो CP इज बेसिकली द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू T1, तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंथैल्पी डायरेक्ट वैल्यू दे रखा है। तो H1 इज गिवन 100, ठीक है।
सी पी इंटू टी वन यहाँ नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि वो जनरली एच इक्वल टू सी पी इंटू टी वन फॉर आइडियल गैसेस, ठीक है। अब यहाँ पे स्टीम का इंथैल्पी हमें दे रखा है, तो हम डायरेक्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है। तो एच वन हमें दे रखा है, प्लस सी वन का वैल्यू है दैट इज 100 स्क्वायर अपॉन 2000, दिस इज इक्वल टू एच टू हमें निकालना है, प्लस 200 स्क्वायर अपॉन 2000, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आई विल बी गेटिंग एच टू इक्वल्स टू 85 किलो जूल पर के जी। आप इसको सॉल्व कीजिए, ये बहुत आसान है, ठीक है। ये जब आप इसको 100 स्क्वायर अपॉन 2000 इसको सॉल्व करेंगे, सो यू विल बी गेटिंग 5, ओके। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सो यू विल बी गेटिंग हाउ मच, दैट विल बी डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, सो यू विल बी गेटिंग हाउ मच 20। जब इसको सॉल्व करोगे तो यू विल बी गेटिंग 20। सो H2 का वैल्यू क्या होगा, 100 प्लस 5 105 माइनस 20, सो 105 माइनस 20 इज नथिंग बट 85। सो आंसर जो हमारा आएगा दैट इज 85 किलो जूल पर के जी, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर है, ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, इसमें हमें बेसिक इक्वेशन लगाना है तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रॉब्लम है गेट 2015 का, दिस इज बेसिकली गेट 2015 प्रॉब्लम। अब यहाँ हमें देखिए ए का डायमेंशन निकालना है, ठीक है। बेसिकली द वन डबल इक्वेशन ऑफ स्टेट इज पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल्स टू आर इंटू टी, वेयर पी इज प्रेशर, वी इज स्पेसिफिक वॉल्यूम। ध्यान दीजिए यहाँ पे जो वी है वो वॉल्यूम नहीं है, वो स्पेसिफिक वॉल्यूम है। टी इज टेम्परेचर, आर इज बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, द एसआई यूनिट ऑफ ए विल बी। और हमें क्या बताना है, ए का एसआई यूनिट हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, यहाँ पे जब हम लिखेंगे इसको, क्योंकि जब प्रेशर में जब हम ऐड कर रहे हैं कुछ टर्म ए बाई वी स्क्वायर, तो हमें ये ऑब्वियस है कि प्रेशर में हम कुछ प्रेशर वाला टर्म ही ऐड करेंगे, ठीक है ना। फोर्स वाला टर्म तो प्रेशर में ऐड करेंगे नहीं, पास्कल में न्यूटन तो नहीं ऐड करेंगे ना हम। सो पी इज बेसिकली प्रेशर, तो पी के साथ हमने कुछ टर्म ऐड किया, तो बेसिकली ए बाई वी स्क्वायर का जो यूनिट होगा दैट इज मस्ट बी इन पास्कल। और पास्कल क्या लिख सकता हूँ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स अपॉन एरिया होता है, ओके। ए का डायमेंशन हमें कैलकुलेट, यूनिट ऐसा यूनिट ऑफ ए का यूनिट हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलो निकालते हैं। अब ए का यूनिट हमें कैलकुलेट करना है, वी जो है वो स्पेसिफिक वॉल्यूम है, स्पेसिफिक वॉल्यूम इज नथिंग बट द वॉल्यूम पर यूनिट मास, सो स्पेसिफिक वॉल्यूम इज मीटर क्यूब पर के जी। इसका हमें स्क्वायर करना है, कर देते हैं, दैट इज बेसिकली इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल होना चाहिए। अब न्यूटन क्या होता है, एम इन टू ए, सो के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नीचे मीटर स्क्वायर था। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ए का एसआई यूनिट आ जाएगा, तो प्रॉपर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो द वैल्यू ऑफ द यूनिट ऑफ ए विल बी इक्वल टू, देखिए मीटर रेज टू पावर 6 अपॉन के जी स्क्वायर इंटू के जी इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ, तो मीटर स्क्वायर और यहाँ पे मीटर, तो एक मीटर यहाँ से कैंसिल होगा, एक मीटर यहाँ पे मीटर रेज टू पावर 5 बन जाएगा, तो आंसर विल बी मीटर रेज टू पावर 5, ओके। अब यहाँ पे जब चीज़ें कैंसिल आउट करता हूँ मैं, तो एक केजी से एक केजी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो मीटर रेज टू पावर 5 अपॉन के जी इंटू सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज एसआई यूनिट ऑफ ए, एसआई यूनिट ऑफ ए। तो ऐसे हम ए का ऐसा यूनिट बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, और बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, बेसिकली हमें यूनिट बैलेंस करना है। बस हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जब प्रेशर में हम कुछ चीज़ ऐड कर रहे हैं, तो इट इज़ ए बाई वी स्क्वायर इज बेसिकली प्रेशर, तो इट शुड बी इन पास्कल। सो बस ये हमें हल्का सा पॉइंट ध्यान रखना है, और हमारा आंसर आ चुका है, देखिए। सो इस तरीके से जो हमारा आंसर आएगा अब हमारे पास, दैट इज मीटर रेज टू पावर 5 अपॉन के जी इंटू सेकेंड स्क्वायर। सो आंसर इज सी, ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। तो देखिए ये हमें फ्री के मार्क्स मिल चुके हैं, ठीक है। अगला प्रॉब्लम जब हम देखते हैं, यदि आपको इनमें कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कोई डाउट होता है, तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। और यदि आपको लगता है कि हम कोई बेटर मेथड हो सकता है डिस्कशन का आपके पास, तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, सो दैट वी कैन सॉर्ट आउट दैट प्रॉब्लम्स। या आपको कुछ अलग टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहिए, तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। वी विल डेफिनेटली हेल्प यू। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, दिस इज गेट 2015 प्रॉब्लम, ओके। सो दिस प्रॉब्लम वी विल डिस्कस हियर एज आई एम रीडिंग द प्रॉब्लम, ओके।
सो वर्क इज डन ऑन एन एडियाबैटिक सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए सिस्टम जो है वो एडियाबैटिक है। एडियाबैटिक सिस्टम हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे देयर इज बेसिकली नो हीट लॉस। जब भी हमारा सिस्टम एडियाबैटिक है तो बेसिकली उसका मतलब ये है कि हीट लॉस इज बेसिकली जीरो। अब वर्क डन ऑन द सिस्टम है, अब वर्क डन ऑन द सिस्टम है, इसका मतलब बेसिकली हमें यहाँ से पता चल रहा है कि देयर इज अ वर्क इनपुट टू द सिस्टम। और वर्क इनपुट हमारा कैसा आना चाहिए? वर्क इनपुट का मतलब होता है वर्क सप्लाई कर रहे हैं, तो डब्ल्यू का वैल्यू हमारा जो स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन है उसके हिसाब से नेगेटिव आएगा। ठीक है, क्योंकि हम क्या मानते हैं, हम ये मानते हैं कि वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव। वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो वो नेगेटिव होगा क्योंकि हमारा साइन कन्वेंशन है। अब देखिए यहाँ पे पढ़ता हूँ आगे, ड्यू टू विच इट्स वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड। अब हम जो सिस्टम है वहाँ वर्क कर रहे हैं डियाबेटिक सिस्टम में, और उस वर्क करने की वजह से जो वर्किंग फ्लूइड है उसका वेलोसिटी बढ़ के 10 से 20 हो जाता है। एलिवेशन इंक्रीजेस बाय 20 मीटर। ठीक है, एलिवेशन 20 मीटर बढ़ जाता है। द टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय 1 केल्विन। तो देखो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो बेसिकली इंटरनल एनर्जी बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, एलिवेशन बढ़ा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा। इसका मतलब जो टोटल एनर्जी जो हम ई लिखते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं टोटल एनर्जी से, एंड विच इज सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, हमने डिस्कस किया है मॉर्निंग वाली वीडियोज में। जब हम फर्स्ट लॉ डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे हमने इसको डिटेल से डिस्कस किया है। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में वी हैव डिस्कस्ड। ओके, सो यदि आपको इसमें प्रॉब्लम है तो आप वो वीडियो देख सकते हो जो थर्मोडायनेमिक्स के, जिसमें कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, मॉर्निंग वाली वीडियोज में हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, इवनिंग में जो हम वीडियोज यहाँ अपलोड करते हैं उनमें हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम हमारे कॉन्सेप्ट्स को और क्रिस्टल क्लियर करते हैं। ठीक है, तो क्लैरिटी बढ़ाने के लिए वी आर डिस्कसिंग हियर गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो आप देख सकते हैं। तो अगला है कि द मास ऑफ सिस्टम इज 10 kg। जो सिस्टम में मास है दैट इज 10 kg। सीवी हमें गिवन है 100 जूल पर केजी केल्विन, एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इफ देयर इज नो चेंज इन एनी अदर कंपोनेंट ऑफ द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इसके अलावा जो भी कंपोनेंट्स है एनर्जी के उनमें कोई चेंज नहीं होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल वर्क डन ऑन द सिस्टम विल बी। देखिए हमें पहले ही बोल दिया कि वह मैग्नीट्यूड ऑफ, तो हमें अब आपको इसका पता चलेगा इसका मीनिंग, क्योंकि यदि इसमें पढ़ने में थोड़ा आपने गलती कर दिया तो आपका सही आंसर निकाला हुआ भी आप गलत फिल करके आ जाएंगे और आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो देखिए इसने मैग्नीट्यूड पूछा है, विद साइन नहीं पूछा है, हमें केवल मैग्नीट्यूड बताना है। ठीक है, तो आंसर जो आएगा, मान लो आपका -4.5 आ रहा है तो आपको जो वर्क आ रहा है हमारा वो -4.5 आ रहा है, लेकिन हमें फिल 4.5 करना है क्योंकि मैग्नीट्यूड पूछा। तो इन बातों का बहुत ध्यान रखना है क्योंकि अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे वहाँ पे। तो हम देखिए सिस्टम को ड्रॉ करता हूँ मैं बेसिकली यहाँ पे, दिस इज अवर सिस्टम और ये एडियाबैटिक सिस्टम है, मतलब कुछ भी इसमें हीट लॉस नहीं है, हम इसमें वर्क सप्लाई कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू सप्लाई द वर्क टू द सिस्टम, और वर्क सप्लाई करने की वजह से इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ चुका है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ चुका है। ठीक है, तो जब हम इक्वेशन लिखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए डी ई इज बेसिकली इक्वल्स टू डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू फॉर अ प्रोसेस। अब इस प्रोसेस में हमने वर्क तो इनपुट किया है लेकिन हीट लॉस कुछ भी नहीं है क्योंकि इंसुलेटेड है। अब डी ई इज व्हाट, बेसिकली डी यू प्लस डी के ई प्लस डी इंटू पी ई, क्योंकि देखिए यहाँ पे टोटल एनर्जी में इंटरनल भी होगा, काइनेटिक भी होगा और पोटेंशियल भी होगा, दिस इज माइनस डेल डब्ल्यू। अब देखिए, अब इंटरनल एनर्जी क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी व्हाट, एम इंटू सी वी इंटू डेल्टा टी, प्लस काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या होगा, हाफ इंटू एम इंटू वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी में चेंज क्या होगा, एम जी इंटू एच टू माइनस एच वन, दिस विल बी माइनस ऑफ डेल डब्ल्यू। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे चेक करते हैं कि टेम्परेचर कितना बढ़ा, मास कितना है। सो देखिए मास ऑफ द सिस्टम इज 10 kg। सो एम का जो वैल्यू है वो हमें गिवन है 10 kg। सी वी का जो वैल्यू है वो हमें गिवन है 100 जूल पर केजी केल्विन। स्पीड जो है वो बढ़ा है 10 मीटर पर सेकंड से
10 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज होके स्पीड जो इंक्रीज होके हो जाता है 20 मीटर पर सेकेंड, और जो एलिवेशन बढ़ता है वो 20 मीटर, जो डेल्टा एच जो है वो है 20 मीटर। तो मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कुछ और डेटा की हमें ज़रूरत है। और जी का वैल्यू इन्होंने 10 दे रखा है, ठीक है, जी हमें 10 दे रखा है, तो हम इस डेटा को यूज कर लेते हैं। सो देखिए मास इज बेसिकली 10 kg, CV जो है वो 100 जूल पर kg केल्विन है, डेल्टा टी जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ वो 1 केल्विन हुआ है, ठीक है, प्लस हाफ इंटू मास इज 10 kg, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, V2 स्क्वायर होगा 400, 20 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज 100, प्लस m इंटू जी, मास 10 kg है, जी को 10 लेना है, हाइट का जो एलिवेशन है उसका जो डिफरेंस है वो 20 मीटर बड़ा है, क्योंकि ठीक है डेल्टा एच इज +20। सो यहाँ से हमारे पास आएगा माइनस डेल डब्ल्यू। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो इट इज़ नथिंग बट 1000, प्लस इसको सॉल्व करूँगा सो 400 माइनस 300 दैट इज़ नथिंग बट यहाँ पे आएगा हमारा 1500, प्लस इसको सॉल्व करते हैं सो दैट इज़ 2000, दैट इज माइनस ऑफ डेल डब्ल्यू। तो यहाँ पे जो हमारे पास वर्क ट्रांसफ़र हुआ है सिस्टम में दैट इज माइनस ऑफ 4500 जूल, दैट इज इक्वल्स टू डब्ल्यू। अब देखिए इन्होंने बोला था मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क इनपुट, और किस में पूछा था, किलो जूल में पूछा, तो किलो जूल में कन्वर्ट करता हूँ सो इट विल बी 4.5 किलो जूल वर्क इनपुट, ठीक है। सो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क कितना होगा 4.5 किलो जूल, तो आंसर इज 4.5। ध्यान रखना यहाँ पे माइनस मत फिल करके आना, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। इट इज़ बेसिकली गेट प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम, यदि आप माइनस फिल कर दोगे सो यू आर गोइंग टू लूज 2 मार्क्स, और जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है 2 मार्क्स का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, दिस इज अगेन गेट प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम। The air enters an adiabatic nozzle at 300 kilopascal, ये 2015 का प्रॉब्लम है, दिस इज गेट 2015 प्रॉब्लम आई एम डिस्कसिंग हियर। Air enters an adiabatic nozzle, तो अगेन दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू nozzle at 300 kilopascal 500 Kelvin with velocity of 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए एडियाबैटिक नोजल में जो कंडीशंस हमें गिवन है नोजल की एंट्री पे कि प्रेशर 300 किलोपास्कल है, टेम्परेचर 500 केल्विन है, वेलोसिटी विद विच द फ्लूइड इज एंटरिंग दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। सो देखिए यहाँ पे मैं डायग्राम बना लेता हूँ नोजल का, दिस इज बेसिकली बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नोजल, ओके। सो हियर in this case pressure and temperature are given, so temperature is basically 500 Kelvin and the velocity c1 here is 10 meter per second, ठीक है। it leave the nozzle at 100 kilopascal, यहाँ पे प्रेशर हमें गिवन है, with the velocity of, यहाँ पे जो वर्किंग फ्लूइड है हमारे पास एयर, उसका जो एग्जिट सेक्शन पे वेलोसिटी है दैट इज c2 एंड दैट इज 180 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे जो इनलेट एरिया है दैट इज बेसिकली 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे वर्किंग फ्लूइड आ रहा है, ठीक है, यहाँ से इट इज लिविंग, ओके। द स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर CP का वैल्यू हमें दे रखा 1008 जूल पर केजी केल्विन। अब हमें एग्जिट टेम्परेचर निकालना है। अब देखिए यहाँ पे एडियाबैटिक नोजल है, ठीक है, तो हीट लॉस कुछ भी नहीं हो रहा, नोजल से हम वर्क तो प्रोड्यूस करेंगे नहीं, तो जब हम ऐसा भी इक्वेशन लगाता हूँ H1 प्लस C1 स्क्वायर अपॉन 2000 प्लस G इंटू Z1 प्लस Q, दिस इज इक्वल्स टू H2 प्लस C2 स्क्वायर अपॉन 2000 प्लस G इंटू Z2 प्लस W। तो यहाँ से वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एग्जिट टेम्परेचर, क्योंकि इंथैल्पी आ जाएगा तो हमारे पास एग्जिट टेम्परेचर भी आ जाएगा, ठीक है। तो H1 का वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, इंथैल्पी दैट इज 1.008 इंटू टेम्परेचर विच इज हाउ मच, इनलेट टेम्परेचर हमें गिवन था दैट इज बेसिकली 500 केल्विन, देखिए यहाँ पे गिवन है 500 केल्विन है, ठीक है। सो दिस इज 500 केल्विन, तो H क्या होता है CP इंटू T1। जब अब इसका यूनिट आप देखोगे तो ये आएगा किलो जूल पर केजी में, ध्यान रखना, क्योंकि H जो CP है हमें किलो जूल पर केजी केल्विन में सब्सटीट्यूट किया है, 1008 दे रखा था, मैंने 1.008 रखा है, क्यों, किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए। प्लस देखो इनलेट पे वेलोसिटी है वो कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 स्क्वायर अपॉन 2000 ये किलो जूल पर केजी में हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी के चेंजेस हम नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि कुछ भी सिग्निफिकेंट नहीं होते। एडियाबैटिक नोजल है तो हीट लॉस को नेग्लेक्ट कर देंगे, वर्क देयर वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनी वर्क, सो दिस इज इक्वल टू 1.008 इंटू द टेम्परेचर हियर इज
वी हैव टू कैलकुलेट ओके कि एग्जिट टेम्परेचर कितना है। एग्जिट सेक्शन पे जो वेलोसिटी होगा दैट इज 180 स्क्वायर अपॉन 2000। यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो आई एम गेटिंग T2 इक्वल्स टू 484 केल्विन। यदि हम इसको सॉल्व करते हैं ओके सो आई विल बी गेटिंग आंसर सी 484 केल्विन। So by proper solving this equation I will be getting the value of T2 here.